عام طور پہ بجٹ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ۔ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں لوگ اگرچہ صرف ان اخراجات کو گنتے ہیں جن میں تنخواہیں وغیرہ ہوں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں معاشرتی فلاح کے لیے وہ تمام تدابیر کیے جاتے ہیں جس سے معاشرہ پرسکون رہے، آئین کی بالادستی، آئین کے قواعد آرٹیکلز کے مطابق عمل کو یقینی بنانا اور ایک اسلامی ملک میں اسلامی اقدار کا تحفظ اور آئین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق تمام اقدامات کرنا، فرقواریت کے خاتمے، نفرتوں کا قلقمہ، قانون کا بلا امتیاز نفاذ اور ہر قدم آئین کے مطابق رکھنا، یہ وسائل تمام نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور اب تو بدقسمتی سے متوسط طبقہ اپنے آخری حدود میں ہے اور پاکستان میں اب امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر ایک باقاعدہ حب الوطنی کے ساتھ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہونے کی بنیاد پہ اقدامات کا بنیاد رکھا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ آج بھی معاشرہ سدھار کی طرف جائے۔ جناب اسپیکر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ نفرتوں کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے دینی اقدار جن کو آئین کے آرٹیکل 31 میں مکمل تحفظ ہے، ان کی کیا صورتحال ہے۔ ایک اور دکھ کی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہر منصبدار پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اس آئین پہ عمل درآمد بھی کرے گا اور اس آئین کی وفاداری کا قسم اٹھاتا ہے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے معزز اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے اور پھر جب گورنمنٹ بنی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف کی آئین کی پابندی کا حلف اٹھایا ہے، وزراء صاحبان نے، ایون جناب اسپیکر صاحب آپ نے، اور اسی طرح آگے جائیں گورنر صاحب، پریزیڈنٹ، فیڈرل منسٹرز، جو ادارے ہیں وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، آئین پہ عمل درآمد ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
لیکن انفارچونیٹلی یہ عہد و پیمان گزشتہ کئی دہائیوں سے دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے، ورنہ اس کے ثمرات آج ہمارے سامنے ہوتے۔ میں جناب کی توجہ دلاتا ہوں آئین کی طرف۔ اگر ہم اس آئین کے پرنسپلز آف پالیسی جو آئین کا حصہ ہے، جس کی پاسداری اور اس پہ عمل ہر شخص کا فرض ہے اور ہر حلف اٹھانے والے کا فرض ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ تم کہتے کیوں ہو جو عملاً نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، پرنسپلز آف پالیسی آئین کا انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے آرٹیکل 29 سے۔ میں جناب کی توجہ اور ہاؤس کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں، پھر آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کیوں اس طرح ہے۔ Principles of policy. The principles set out in this chapter shall be known as the principles of policy, and it is the responsibility of each organ and authority of the state and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with those principles insofar as they relate to the functions of the organ or the authority. Insofar as the observance of any particular principles of policy may be dependent upon the resources being available for the purpose, the principles shall be regarded as being subject to the availability of resources. In respect of each year, it's very important, Janab Speaker, in respect of each year, the President, in relation to the affairs of the Federation, and the Governor of each province, in relation to the affairs of the province, shall cause to be prepared and led before each house of Majlis-e-Shura, Parliament, or as the case may be, the Provincial Assembly, a report on the observance and implementation of the principles of policy, and provision shall be made in the rules of procedure of National Assembly and the Senate, or as the case may be, the Provincial Assembly for discussion on such report. اب اگر پرنسپلز آف پالیسی پہ کوئی قدم ہوتا، کوئی رپورٹ ہوتی، تو آج معاشرہ اس طرح تاریکیوں میں نہیں ہوتا۔ Responsibility with respect of principles of policy, the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned. Article 37, Janab Speaker, steps shall be taken. It is the mandatory provision of the Constitution. Steps shall be taken
to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. یہ جناب پاکستان کے آئین کا ایک چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی. To make the teaching of the Holy Quran in Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic language, and to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. اب مجھے بتایا جائے جناب اسپیکر کہ 70 سال سے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اس آئین کا یہ پروویژن ہم پہ لاگو بھی ہے. ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آج جو جس طرح ہم خوار ہیں، جس طرح ہم پریشان ہیں، جس طرح ہم بے چین ہیں، اس کی یہی بنیاد ہے. جناب اسپیکر، مسلمانوں کے لیے قرآن کریم نے 3 آیتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ قرآن جو تمہارا دستور ہے، اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے. سورہ مائدہ کی جناب اسپیکر آیت نمبر 44 ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اسی سورہ مائدہ کی آیت 45 ہے جس میں رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اس قانون پہ عمل درآمد نہ کرے، جو اس قانون کو نافذ نہ کرے جو اللہ نے اپنے قرآن میں ہدایت دی ہے، وہ ظالموں میں سے ہیں. اور پھر ایک اور آیت ہے جناب اسپیکر، آیت 47 آف سورہ مائدہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ نے بھیجا ہوا دستور ہے اس پہ عمل نہ کرنے سے یہ وعید ہے کہ وہ فاسقون میں سے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے کتنا بیگانہ ہیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور پھر قدرت نے ہمارا کس طرح مذاق اڑایا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، معاشرے میں درندگی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. شرافت کا تصور مکمل طور پہ ختم ہو رہا ہے. اگر داستان میں بیان کرنا شروع کروں تو جناب بجٹ کا پورا سیشن گزر جائے گا لیکن داستان باقی رہے گا. ملک صاحب، حال ہی میں بجٹ سے متعلق ہی بات کریں یہ تو سارا بجٹ کا حصہ ہے جناب. نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں نے اٹھایا اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ سارا
नॉन डेवलपमेंट बजट का हिस्सा है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हालिया अभी के दिनों में मैं अर्ज़ कर रहा था कि दरिंदगी ने यहाँ हमारे मुल्क में और हमारे सूबे में पंजे गाड़े हैं। हालिया दिनों में हज़ारा टाउन का वाक़या, पंजगूर का वाक़या, तुर्बत का वाक़या, अगर इसको बगौर देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में इस बजट को कैसे अवाम दोस्त बजट कहा जा सकता है, जहां जान और माल की हिफाजत के लिए कोई ज़राए न हो। एक दूसरी गुजारिश जनाब स्पीकर, बजट तो वैसे पेश हुआ जहां इतने अखराजात नॉन डेवलपमेंट बजट में होते हैं, वहां अगर मुलाजमीन के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ रखा जाता, क्योंकि आजकल की महंगाई में, और महंगाई भी इस तरह है जनाब स्पीकर कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे मफलूज है, चाहे फेडरल है चाहे प्रोविंशियल। अगर पेट्रोल 75 रुपए में है तो चीनी की कीमत वही पुरानी है, घी की कीमत वही पुरानी है, दालों की कीमत वही पुरानी है, गोश्त की कीमत वही पुरानी है। ऐसी सूरत में लोग कहाँ जाएं? किसी चीज को देखा नहीं जाता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉलेसनेस है टोटली। बजट का अगर तजिया किया जाए तो जनाब स्पीकर, हर जगह सवाल पूछा जाता है कि बजट आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन। सादा तजिया किया जाए तो जिस तरह तरक्याती बजट अगर आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया जाए, लोगों की सहूलतों को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया जाए, तो आवाम दोस्त बजट कहलाएगा। अगर अपनी ख्वाहिशात और हवस की तकमील के लिए बजट के कागजात बनाए जाए तो वो आवाम दुश्मन बजट होगा, आवाम दोस्त कभी नहीं हो सकता। एक ख़ानदान के बजट में भी अगर तालीम और सेहत और दीगर ज़रूरियात तमाम ख़ानदान के अफराद को मद्देनज़र रखा जाए तो वो कुंबा और वो ख़ानदान खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ अय्याशी के लिए अपने मंसूबे बनाएं तो वो ख़ानदान और कुंबा भी एक इकट्ठा कभी भी नहीं रह सकता। अगर सूबे की मजमूई पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की जाए, तालीम, सेहत और मवासलात पे तवज्जो हो, तो ये लोगों की सहूलियात का बायस बनता है। हमारे यहाँ माइंस की एक नियामत है बलूचिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह माइंस की रॉयल्टी वसूल की जाती है। फेडरेशन भी अपना हिस्सा लेता है, सूबा भी अपना हिस्सा लेता है, लेकिन जिन इलाकों से माइंस निकलता है
ان شہروں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر ان حالات کے پیش نظر تھوڑا بہتا یہ سوچ ہوتا تو ہمارے بلوچستان کے وہ تمام شہر جہاں سے کسی قسم کا معدنیات نکلتا ہے وہ شہر بہت زیادہ آباد بھی ہوتے، خوشحال بھی ہوتے۔ اگر زراعت پہ توجہ دی جاتی اور زرعی قوت بڑھائی جاتی، زمینداروں کی مدد کی جاتی، تو اس وقت بلوچستان میں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کارخانے بلوچستان میں نہیں ہیں، روزگار کا کوئی دوسرا ذریعہ بلوچستان میں نہیں ہے، دار و مدار زراعت پر ہے اور دار و مدار مال مویشی پالنے پر ہے۔ لیکن اگر ان دونوں شعبوں کو بھی لاوارث چھوڑا جائے تو پھر بلوچستان کی معیشت کی کیا صورتحال ہوگی؟ ساتھ میں بلوچستان کے وسائل جس میں سیندک ہے، ریکوڈک ہے، ساتھ میں گوادر ہے، اس کے لیے کوئی پازیٹیو تدابیر ہوتے ہیں تو اس سے صوبے کی معیشت پہ مثبت اثر پڑتے ہیں اور بجٹ کو اچھا کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے، زمینداروں کے فصلات کے پرائم ٹائم میں کیسکو کی طرف سے ان کے بجلی کاٹ دی جاتی ہے، پانی کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے اور زمینداروں کے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جی صوبہ اپنی حصے کی سبسڈی نہیں دیتا، ہمارے لیے کوئی کون سا راستہ رہ جاتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کریں۔ تو ایک بنیادی چیز ہے، اگر ان تمام معاملات پہ غور ہوتا اسی طرح شہریوں کو بھی جہاں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بل ادا کرتے ہیں لیکن کیسکو والے دوسرے لوگوں سے جو نادہندہ ہیں ان سے بل وصول کرنے کے لیے ان کی بھی بجلی کاٹ دیتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا چیک نہیں ہے۔ میرے سامنے ملک نصیر صاحب تھے اور ہم کوئٹہ کے تمام ایم پی ایز تھے، کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر نے اور کوئٹہ کے ڈی آئی جی نے ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ جی جو لوگ بل نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ڈنڈے سے ایماندار اور بے ایمان سب کو مت ہانکو۔ جو شریف لوگ بل ادا کرتے ہیں ان کے کنیکشن کاٹنا یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اس کو دیکھے اور لوگوں کو یہ سہولت انشور کرائے تاکہ روز روز کی یہ پریشانیاں لوگوں کی یہ ختم ہو جائیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سال سے حزب اختلاف کو جس غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے سے کچلا جا رہا ہے اس کی مثال پاکستان میں نہیں
पूरी दुनिया में नहीं मिलती। कहा जाता है कि जमहूरियत की पटरी में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार इसके दो पहिए हैं, लेकिन फिल वाक़या, फिल हकीकत एविडेंट सूरत हाल है कि हुकूमत ज़रेंज मोटरसाइकिल की तरह एक पहिए के साथ चल रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ के पहिए को निकाल के उखाड़ के बहुत दूर फेंका गया है। 2 साल से ये सूरत हाल है। बदकिस्मती से अव्वल तो जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, और अगर है भी तो उसकी ये कैफियत है, जिस तरह बेंच एंड बार ये उसूल है, कहावत है कि ये अदलिये के 2 पहिए हैं, बेंच एंड बार, इसी तरह जमहूरियत के बारे में भी यही कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो हाल है वो अब सबके सामने है। मलक साहब थोड़ी मुख्तसर कर दें जी अपनी जनाब। स्पीच, ताकि और अरकान भी बात कर सके जी बजट जनाब, के सेशन। मुझे थोड़ा सा आधा घंटा पूरा अर्ज करने दें, क्योंकि मैं रिपीट एक लफ्ज़ भी नहीं करता हूँ, ये आपने नोट किया होगा कभी भी, तो जो गुजारिश है वो उसको करने दें मुझे। एक ये भी हकीकत है जनाब स्पीकर कि पूरी हुकूमत PSDP, PND अब सिमट कर CM हाउस तक पहुंची है। हालांकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि PND में जाएं तो बेबसी, CM हाउस में जाएं तो खामोशी, और CM एनेक्सी से डेवलपमेंट और तमाम आर्डर्स इशू होते हैं। ये इस वक्त जमहूरियत की कैफियत है, और ये जमहूरी हुकूमत का जो यानी आंखों देखा हाल है, जिसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, अगर उसूलों के तहत हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरियत का निखार है, तो फिर इस निखार को उखाड़ के फेंकने का इख्तियार किसको दिया है? जबर और जुल्म के ज़रिए तो ये बात हो सकती है, लेकिन इख्तियार के हवाले से ऐसा कतन नहीं है। इस निकार को मलियामेंट करने का कोई हक किसी को भी नहीं है। जनाब स्पीकर, 2018 के इंतखाबात हम सब के सामने हैं। तमाम हलकों में उम्मीदवारान मैदान में उतरे, किसी हलके में 30, किसी में 40, इससे भी ज़्यादा, इससे कम। लेकिन 25 जुलाई को जब इंतखाबात हुए तो 51 हलकों में आज जो इस हाउस में बैठे हुए हजरात हैं, स्पेशल सीट्स के अलावा जो 51 हलके हैं, उनमें 30 में से भी एक, 50 में से भी एक, 40 में से भी एक रिटर्न कैंडिडेट जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किया, और उस एक कैंडिडेट को उस हलके के नुमाइंदगी का आईनी हकदार पाया गया। लेकिन बदकिस्मती से ये मिसाल भी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिवाय बलूचिस्तान के, कि इस सूबे में
हुकूमती पार्टी के हारे हुए लोगों को वो मराद दिए गए जैसे जीत उन्होंने की है। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जिबर है, मजाक उड़ाने वाली बात है। ऐसे फंडों से नवाजना जमहूरियत का कत्ल है और जमहूरियत के साथ साथ ये इंसानी अक़दार का कत्ल है। हम समझते हैं कि ऐसे अक़दार मुस्तक़बिल पे इंतहाई बुरे असर डालेंगे और मैं ये भी यकीन दिलाता हूं जनाब स्पीकर, चाहे अरबों रुपए ये इन हारे हुए लोगों पे खर्च करें, वोट इनको नहीं मिलेंगी। उसकी दलील है, उसकी वजह ये है कि बलोचिस्तान के 1,23,00,000 अवाम के सामने ये सारी कारिस्तानियां हैं, ये सारा जिब्र मौजूद है कि हल्के का आईनी नुमाइंदा जेड है और हल्के में हारा हुआ शख्स भी उसको नवाजा जा रहा है जोर से और जिब्र से। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चाहे जितने अरबों रुपए इन पे खर्च किए जाएं, ये जीतेंगे नहीं। तो जनाब स्पीकर, मलिक साहब मुख्तसर कर दें, बात आपका टाइम पूरा हो गया, मेहरबानी। जी मैं जानता हूं मलिक सिकंदर साहब जनाब अपोजिशन लीडर स्पीकर, क्या कभी आपने ये देखा है कि एक हारा हुआ शख्स हुकूमती पार्टी का आज खुद जाकर अपोजिशन के हलकों में कामों का इफ्तिताह करे? इससे तो बाइस शर्म बात पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। क्या इस दुनिया को कुछ नजर नहीं आ रहा? ऐसा जुल्म और जिबर दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है जिस तरह इस सो कॉल्ड जमहूरियत में हो रहा है। ये अमल अपोजिशन के हलकों के साथ ये जिबर आइन के आर्टिकल 9, मैं पर्टिकुलरली 9 का नाम लूंगा क्योंकि आर्टिकल 9, आप कहेंगे कि आर्टिकल 9 का ताल्लुक तो लाइफ एंड लिबर्टी से है, उसका यहाँ क्या ताल्लुक है? मैं अर्ज करूंगा कि आर्टिकल 9 ये एक फंडामेंटल राइट है जिसमें लाइफ और लिबर्टी की security of person, no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. ये आइन का डिमांड है। लेकिन जनाब स्पीकर, यहाँ पे अपोजिशन के 23 अराकीन की जिंदगियों से खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की तशरीह में एक बहुत अच्छी बात कही है कि आर्टिकल 9 सिर्फ जिंदगी बचाना या जिंदगी ले जाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी शख्स की इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका आईनी और कानूनी मुकाम छीनना भी उसकी जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये हुकूमत अपोजिशन के अराकीन की जिंदगियों से खेल रही है, उनकी जिंदगियां छीनने की पीछे पड़ी हुई है, उनके इज्जत और नामूस को दांव पे लगा रहे हैं, जो दुनिया का बदतरीन जुल्म है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा केतरान साहब अपनी चेयर पर बैठे।
जनाब स्पीकर, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हमेशा इम्तियाजी और धोखाधड़ी का सलूक किया जा रहा है। कोरोना से मुताल्लिक आप सब जानते हैं कि फरवरी में यहाँ तहरीक इल्तिवा पेश हुई, उस पर बहस हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ने बैक आवाज़ कहा कि ये सियासत का टाइम नहीं है, सियासत का वक्त नहीं है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर सीएम साहब ने सीएम हाउस में कोरोना से मुताल्लिक मीटिंग रखी, हमें 3 बजे इत्ला दी। 3 बजे जब हम साथियों ने आपस में मशवरा किया तो हम जहां कहीं थे वहां से दौड़ते हुए हम सीएम हाउस आए कि कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत कदम उठाना चाहती है, हमें साथ देना चाहिए, यहाँ ये वक्त सियासत का नहीं है। वहाँ हमने मशवरे दिए, लेकिन उसके बाद फिर कोई एतमाद हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं दिलाया गया। जनाब स्पीकर, जब अप्रैल में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथियों ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो 3 अप्रैल को मोहतरम जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सूबाई असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से मिलने तशरीफ़ लाए। ये एविडेंट है कि यहाँ आकर जब हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे तो उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कमेटियों का ऐलान किया, एक अपैक्स कमेटी, एक कोर कमेटी और एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल पे कमेटी, और ये यकीन दिलाया कि इन तमाम कमेटियों में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के लोग होंगे। लेकिन आज 23 जून है, न अपैक्स कमेटी है, न कोर कमेटी है, न डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे कमेटी है जिसमें अपोजिशन के अरकान हों। ऐसी सूरत हाल में आप खुद जनाब स्पीकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त की पीएसडीपी को आप देख लें, इसकी कैफियत साथी आप के सामने रखेंगे, क्योंकि आप बार बार फरमाते हैं कि जी मुख्तसर करो। मैं एक अर्ज़ करता हूं कि मैंने सीएम साहब को एक दरख्वास्त दी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नवाकिली के लिए, क्योंकि हर इलाके में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंबार लगे हुए हैं। सीएम साहब ने मेहरबानी करते हुए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी दी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को भिजवाया, मिनिस्टर स्पोर्ट्स साहब ने मेहरबानी फरमाकर उस समरी को अप्रूव करके दोबारा भिजवाया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नवाकिली के लिए सीएम साहब ने अपने दस्ते मुबारक से मंजूर किया, वो अलमदार रोड में बना। मैं कभी ये नहीं कहूँगा खुदा न खास्ता वहाँ वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना बने, मैं कहूँगा कि बन जाए, 10 बने, लेकिन जो मेरे हल्के में उनका वादा था उसकी ये सूरत हाल रही है। इसी तरह जनाब स्पीकर, हमने प्रोसेस किया 29/1/2020 से चीफ सेक्रेटरी साहब की खिदमत में हमने दरख्वास्त पेश किए
ताकि नेक्स्ट PSDP का वो हिस्सा बनाया जाए। मेरे हलके में गुंजान आबादी है, तालीम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने कुछ जगहों के लिए कॉलेजेस का मुतालबा किया, बॉयज़ कॉलेज नवाकिली, गर्ल्स कॉलेज नवाकिली, साथ में गर्ल्स कॉलेज किली गुल मोहम्मद, बॉयज़ कॉलेज शेख मांदा, बॉयज़ कॉलेज खरोटाबाद, गर्ल्स कॉलेज खेजी। और मैंने गुजारिश की कि इसको PSDP का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में आप सबका तजुर्बा है कि ख़ास तौर पे बच्चियां जहां नज़दीक उनको तालीम की फैसिलिटी है, उस हद तक अगर मैट्रिक तक स्कूल है, हाई स्कूल है, तो वो मैट्रिक करती हैं। अगर कॉलेज नज़दीक है तो फिर वो FSC करती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा फासले पर हो जाता है, उस इलाके से निकल कर जाना वो उनके लिए मुश्किल होता है। वालिदैन भी गरीब होते हैं और उनको पिक एंड ड्रॉप का भी मसला होता है। लेकिन इन तमाम तालीमी उसमें से किसी एक को भी PSDP का हिस्सा नहीं बनाया। जनाब स्पीकर, क्वेटा का एक मेगा प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट, जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं, इस साल भी उसके लिए 1000 मिलियन रुपए रखे गए थे। नासिर साहब उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। मैंने CM साहब की चीफ सेक्रेटरी साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि इस प्रोजेक्ट से नवाकिली, किली कोतवाल, किली उमर और शेख मांदा को बआसानी पानी की फराहमी हो सकती है, बशर्ते कि 2 रिजर्वायर हैं, पैसे भी हैं। 2 रिजर्वायर एक बाईपास पर है, एक थर्मल पावर स्टेशन के साथ है। ये 2 रिजर्वायर तामीर किए जाएं और पैप ऑलरेडी बिछे हुए हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। न तो उसमें से हुआ और न ही इस PSDP में उसमें से कोई चीज़ रखी गई है। हालांकि मेरी करारदाद को इस हाउस ने यूनानिमसली मंजूर भी किया। अब ऐसी सूरत हाल में किस किस्म की कैफियत हमारे साथ है। सेहत में जनाब, मैं पूरे 8-9 महीने से कोशिश रही है कि शेख मांदा के लिए 30 बेडेड हॉस्पिटल, समंगली के लिए और किली गुल मोहम्मद में BHU, खैजी में BHU और खरोटाबाद में BHU, लेकिन इन तमाम में से एक चीज़ भी इस PSDP का हिस्सा नहीं बना है। जनाब एक और चीज़ मैं बड़ी अफसोस के साथ कहूँगा कि मैंने 6-8 महीने कबल अपने हलके के मसाजिद में मफकूद सहूलियात की फराहमी के लिए सेक्रेटरी मजहबी अमूर के तवस्सुत से मामलात चलाए, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इसी तरह मदारिस के लिए दीगर इदारों पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर मदारिस के लिए हमारी दरख्वास्त जाती है तो उसको क्यों नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा जनाब स्पीकर, ये हकीकत है कि ये बजट, जिस तरह बजट के असूल हैं उस तरीके से ये बजट नहीं बना है। इस बजट की कार्रवाई 19 जून की रात से 19 और 20 जून की दरमियानी रात से
20 जून के 4 बजे तक ये कार्रवाई रही है। अब ऐसी सूरत में प्लानिंग कमीशन की हिदायत, कॉन्सेप्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? इसलिए ये जो बजट है ये न तो लोगों के विल के मुताबिक है, न आइन और कानून के मुताबिक बना है, और न ही इसमें इससे पहले जहाँ ज़रूरत है उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर इस बजट को बनाया गया है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक डिक्टेटेड सिलेक्टेड बजट है और मार्क नुमाइंदगी के ज़रिए असम्बली में पेश किया गया है, जो किसी सूरत में भी आवाम दोस्त नहीं है और हम इसका किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मलिक साहब।